अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 101 ता 118 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा खालिदून। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा खालिदून। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। कालू रब्बना गलबत अलैना शिक्वतुना व कुन्ना कौमन द्वाल्लीन। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त खैरुर राहिमीन। फत्तखज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन हत्ता अन्सौकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिनहुम तदहकून। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून। क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन।
قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم. ترجمہ. جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے. تو جن کی تولیں بھاری ہو لیں وہی مراد کو پہنچے، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیں. ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے. اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے رب ہمارے، ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. رب فرمائے گا دتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو. بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے. بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ برسوں کی گنتی سے. بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ؟ تو گننے والوں سے دریافت فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا. اگر کہیں تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے. بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں. اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے. معزز ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر. حسرت و ندامت سے یہ ہونے والے نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہے، اور وہ موت ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ وقت موت سے وقت بحث تک کی مدت کو کہتے ہیں. برزخ وقت موت سے وقت بحث تک کی مدت کو کہتے ہیں.
पहली मरतबा जिसको नफ़ख़ ऊला कहते हैं, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जिन पर दुनिया में फ़ख्र किया करते थे और आपस के नस्बी ताल्लुकात मनक़ता हो जाएंगे और क़राबत की मोहब्बतें बाकी न रहेंगी, और ये हाल होगा कि आदमी अपने भाई और माँ बाप और बीबी और बेटों से भागेगा, जैसे कि दुनिया में पूछते थे, क्योंकि हर एक अपने ही हाल में मुब्तला होगा। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और बाद हिसाब लोग एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करेंगे अमाले सालिया और नेकियों से, नेकियां ना होने के बायस, और वो कुफार हैं। तिरमिजी की हदीस में है कि आग उनको भून डालेगी और ऊपर का होंठ सुकड़ कर निसफ सर तक पहुंचेगा और नीचे का नाफ तक लटक जाएगा, दांत खुले रह जाएंगे, खुदा की पनाह। और उनसे फरमाया जाएगा दुनिया में, तिरमिजी की हदीस में है कि दोज़खी लोग जहन्नम के दारोग़े मालिक को 40 बरस तक पुकारते रहेंगे। उसके बाद वो कहेगा कि तुम जहन्नम ही में पड़े रहोगे। फिर वो परवरदिगार को पुकारेंगे और कहेंगे, ए रब हमारे, हमें दोज़ख से निकाल। और ये पुकार उनकी दूनी उम्र की मुद्दत तक जारी रहेगी। उसके बाद उन्हें ये जवाब दिया जाएगा जो अगली आयत में है। और दुनिया की उम्र कितनी है, इसमें कई कौल हैं। बाद ने कहा कि दुनिया की उम्र 7,000 बरस है, बाद ने कहा 12,000 बरस, बाद ने कहा 3,60,000 बरस। वल्लाहु ताला आलम। अब उनकी उम्मीदें मनक़ता हो जाएंगी और ये अहले जहन्नम का आखिरी कलाम होगा। फिर उसके बाद उन्हें कलाम करना नसीब ना होगा। रोते चीखते डकराते भौंकते रहेंगे। शान नजूल, ये आयतें कुफार कुरैश के हक में नाजिल हुई। ये आयतें कुफार कुरैश के हक में नाजिल हुई, जो हज़रत बिलाल व हज़रत अमार व हज़रत सुहैब व हज़रत खबाब वगैरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फ़ुक़राए अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमस्खुर करते थे, यानी उनके साथ तमस्खुर करने में इतने मशगूल हुए कि अल्लाह ताला ने कुफार से, यानी दुनिया में और कब्र में, ये जवाब इस वजह से देंगे कि उस दिन की दहशत और अजाब की हैबत से उन्हें अपने दुनिया में रहने की मुद्दत याद नहीं रहेगी और उन्हें शक हो जाएगा कि इसीलिए कहेंगे, यानी उन मलाइका से जिनको तूने बंदों की उम्रें और उनके अमाल लिखने पर मामूर किया, उस पर अल्लाह ताला ने बानिस्बत आखरत के और आखरत में जजा के लिए उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया कि तुम पर इबादत लाजिम करें, और आखरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे अमाल की जजा दें। यानी गैरुल्लाह की परस्तिश महज बातिल बेसनद है ईमान वालों को। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर इख्तिताम पजीर हुई। इसी के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी सूरत मोमिनून की जो यहाँ पर उसका इख्तिताम पजीर हुआ। सूरतुल मोमिनून की तिलावत तर्जुमा और तफसीर भी उसकी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। इंशाल्लाह कल से सूरत नूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा करता रहता हूँ और ये जगाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपसे ये इस्तदा करने का मकसद ये है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं कि हम इस आखिरी उम्मत का हिस्सा हैं और इस आखिरी नबी की इस आखिरी उम्मत का हिस्सा हैं। तो खुशनसीबी, बहुत बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम अल्लाह ताला की इस पाक कलाम का मैसेज जो है वो दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपनी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इस छोटी सी कोशिश में आप अपना ज़रूर हिस्सा डालें, सदका जारिया समझते हुए ज़रूर हिस्सा डालें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा ये इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आपके तवज्जुह से भी देखेंगे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफा कामिला अजला अता फरमाए। और आपसे ये इस्तदा, बहुत बड़ी इस्तदा ये है कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, खुद भी देखें, वीडियो को पूरा देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने अजीज़ व अक़ारिब को यकीनन इसकी तबलीग किया करें, और जहाँ तक इस वीडियो को
यूट्यूब के चैनल को आप आगे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए और मुझे और आपको दिन क़यामत अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।